जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणी शास्त्र विभाग, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस, शासकीय अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका शीर्षक है एनवायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि जिन्होंने यह समसामयिक विषय को चूज किया और निश्चित तौर पर इस विषय से हमारे बच्चे और सोसाइटी के लोग लाभान्वित होंगे। ऑनरेबल स्पेशल पैट्रन प्रोफेसर IP त्रिपाठी जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा, चीफ पैट्रन डॉक्टर PR चंदेलकर, एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन जबलपुर डिवीजन, पैट्रन डॉक्टर रवि शंकर नाग जी, प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस, कन्वीनर डॉक्टर RS डहेरिया जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पवन, को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर TP सागर एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप शुक्ला। I myself, Dr. Ashwani Kumar Dubey, working as guest faculty, Department of Zoology, Sri Rajiv Gandhi Government College, Banda. Also, Executive Director, Environment and Social Welfare Society, Khajuraho, India, and Editor-in-Chief, International Journal of Global Science Research, Advisor, Research Board of America, and Coordinator, DNA Club, the National Academy of Sciences, India. सब लोगों को बोल दो शांत रहें। Environmental issues and sustainable development. Today we are going to discuss about this topic. So these are the major environmental issues: global warming, biodiversity, and climate changes. So first of all, we will discuss about the global warming. Global warming means temperature changing. The earth is warming up and there is now overwhelming scientific consensus that it is happening and it's human induced. आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, इसमें हमारे कॉलेज के बच्चे भी हैं, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेशन करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि विगत कुछ दशक से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। Many are agreed that climate change may be one of the greatest threats facing our Earth planet. Recent years shows increasing temperature in various regions and increasing extremes in weather pattern. धीरे धीरे जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे वैश्विक स्तर पर जो हमारे सीजन्स हैं और जो हमारा वेदर पैटर्न्स है वो भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। Higher global temperature are worsening many types of disasters, including the melting of glaciers and sea ice, the bleaching and dying of the coral reefs, extreme storms and flooding, droughts and heat waves. The major shifts in the range of organisms and in the timing for their biological cycles have occurred with an average warming the Earth's surface since the late 19th century, when this warming began of less than 1 degree Celsius. ऐसा कहा गया है कि 19वीं शताब्दी से धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ और उस समय लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से रेज हुआ। परिणाम स्वरूप बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आना शुरू हो गई, जैसे कि डिजास्टर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स,
आइस का पिघलना, बहुत सारे कोरल रीफ्स का इन्फ्लुएंस होना, तूफान, बाढ़ और गर्म हवाओं का चलना, ये धीरे धीरे पृथ्वी पर स्टार्टिंग हुई. The world mostly agreed the something need to be done about the global warming and climate change. इसलिए वैश्विक स्तर पर ऐसा सोचा गया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता है. The first stumbling block, however, has been trying to get an agreement on framework. IPCC, UNEP, and WMO, that is known as by the Intergovernmental Panel of Climate Change, was created by the United Nations Environment Program and the World Meteorological Organization to assess the scientific knowledge on global warming. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह जानने के लिए कि क्या ग्लोबल वार्मिंग वास्तव में हो रहा है, इसके लिए 1988 में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई. द आईपीसीसी concluded in 1990 that there was broad international consensus that climate change was human induced. और आईपीसीसी ने यह कंक्लूड किया 1990 में कि ये जो वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानव के द्वारा प्रकृति के साथ किए जाने वाले हस्तक्षेप की वजह से हो रहा है. That report led way to International Convention for Climate Change, that United Nations Framework Convention on the Climate Changes, signed by over 150 countries at the Rio Earth Summit in 1992. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1992 में इस संबंध में रियो डी जेनेरो में एक बड़ी समिट की गई, जिसमें लगभग 150 कंट्री ने के रिप्रेजेंटेटिव उसमें उपस्थित रहे और एक विस्तृत चर्चा इस विषय पर की गई कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और किस तरह से ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ये कुछ डाटा है जो कि गूगल के द्वारा निकाले गए हैं. इट्स नॉट माय रियल स्टडीज. इसमें यह देखा गया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता गया उस तरीके से धीरे धीरे टेम्परेचर भी रेस किया. टेम्परेचर इंक्रीज इन लास्ट 150 ईयर्स का डेटा इसमें दिखाया गया है. टेम्परेचर धीरे धीरे 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड से -0.2 डिग्री सेंटीग्रेड से धीरे धीरे इंक्रीज हुआ 1860 से लेकर के 2000 तक. फिर हमने इसमें एक रिड्यूस्ड टाइम पीरियड दिया गया लगभग 25 ईयर्स का. उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग अपना प्रभाव पूरे प्लेनेट्स पर दिखा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग प्रोडिक्शन, इसके बारे में किस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है, एक संक्षिप्त डिक्लेरेशन दिया गया है जिसको प्रिडिक्ट किया गया है, फोरकास्टिंग की गई है, भविष्यवाणी की गई है कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में क्या होगा. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्यूम्पशन about the features behavior of mankind, a projection of current trends as represented by number of different scenarios gives temperature increase of about 3 to 5 degree by the year of 21st century or soon after. A 3 degrees centigrade raise would likely raise sea level by about 25 meters, about 82 feet. टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ 1900, 1950, 2000, 2025 और 21वीं सदी तक. अगर इसी तरह से ह्यूमन हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप, प्रकृति के साथ खिलवाड़ चलता रहा तो आगे आने वाले समय में ये टेम्परेचर और इंक्रीज होगा. परिणाम स्वरूप
बहुत सारे चेंजेस पृथ्वी पर आएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित रहने वाले जो जीव जंतु हैं, चाहे वह एक्वेटिक हो, चाहे वह टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वह एरियल हो, इन सभी जीव जंतुओं पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा और अल्टीमेटली मानव जीवन भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो दिए गए हैं। अगर हम इसको कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग पूरे तरीके से तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ इसके प्रभाव को हम बचा सकते हैं और मानव जीवन को पृथ्वी पर करने का प्रयास कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फॉर ग्लोबल वार्मिंग, द फर्स्ट सेक्टर ऑन आवर लिस्ट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड हीट प्रोडक्शन, which account for approximately 28% of the world's greenhouse gas emissions. Renewable energies, the first way to prevent climate change is to move away from fossil fuels. Energy and water efficiency, sustainable transportation, sustainable infrastructure, sustainable agriculture for and forest management, responsible consumption and recycling. Carbon sink, forest and global warming, a mechanism suggested for tackling global warming has been the idea of using carbon sink to soak carbon dioxide. To aid in this, reforestation or planting of new forest have been suggested. This is popular strategy for the logging industry and nations with large forest interest. While there may be some potential in this solution, it cannot be effective on its own. This is because it legitimizes continued destruction and old growth and pristine forest for which are rich ecosystem and have an established biodiversity based that naturally maintain the environment. हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को इस ग्लोबल वार्मिंग से किस तरीके से सेव कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट एरिया वुड रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम। हमें कुछ नए फॉरेस्ट को डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने इकोसिस्टम को रीएस्टेब्लिश कर सकें। It is also criticized for being a quick fix that does not tackle the root cause effectively and does not lead to or promote actual emissions reduction. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी की कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी means diversity is derived from the contractions of biological diversity. This given by Walter G. Rosen in 1985. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द variety of plants, animal and microorganisms that exist in our earth. बायोडाइवर्सिटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? बायोडाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, अपनी खाद्य व्यवस्था को लेकर के और अपने रहन सहन को लेकर के चिंतित रहा है। और इन सब के बीच में किस तरीके से जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है, अगर हम प्राचीन काल से लें, चाहे हम रामायण की बात करें या महाभारत काल की बात करें, तो संजीवनी बूटी से लेकर के और आज तक के बीच में जितना भी सफर मेडिसिनल प्लांट्स का रहा है, चाहे वह हमें एनिमल से प्राप्त हो, चाहे हमें प्लांट से प्राप्त हो,
मानव जीवन हमेशा सजग रहा है और पेड़ पौधे और जंतुओं का लगातार उपयोग करता रहा है अपनी कंफर्टेबल लाइफ बनाने के लिए। At least 118 are based on natural sources. 74% comes from plants, 18% from fungi, 5% from bacteria, and 3% from vertebrate species such as snakes or frogs. ये रिसर्च की गई थी इकोलॉजी सोसाइटी ऑफ अमेरिका के द्वारा 1997 में। यह भी कहा गया है कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द नेचुरल मेडिसिन। जो नेचुरल मेडिसिन है, जो प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, उसमें विश्व की 80% पॉपुलेशन निर्भर करती है। फूड सिक्योरिटी मेन काज रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, वर्ल्ड फेमस राइस वेराइटी IR36 developed from Oryza nivera। डेवलपमेंट ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी, बहुत सी वैरायटी ऐसी हैं जो कि डिसीज को रेजिस्ट करती है। ग्रासी स्टंट डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलपमेंट फ्रॉम ओराइजा। Out of 300 edible crops and only 150 commercialized. Four major food crops: rice, wheat, maize, and potato. Rapid global warming can affect an ecosystem changes to adapt naturally. ग्लोबल वार्मिंग हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करती है और उनमें से कुछ स्पीसीज जो प्रकृति के अनुसार बदलने की क्षमता रख सकती है, वह अपने आप को एडप्ट करती है, और जो नहीं कर सकती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। The Arctic is very sensitive to climate change and already seeing lots of changes. अगर हम आर्कटिक रीजन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा बेल्ट है जो नॉर्थ अमेरिका से लेकर के हमारे चाइना रीजन तक, जिसमें बीच में भारत भी आता है, पूरे हिमालय रीजन से लेकर के ये पूरा का पूरा आर्कटिक रीजन है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट इस आर्कटिक रीजन पर पड़ता है, जिसमें पाए जाने वाली डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, पोलर रीजन के पाए जाने वाले जीव जंतु, ये सारे के सारे इससे प्रभावित होते हैं। और कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर, जो हमारे आइस मेल्टिंग वहां से हो रही है, उसकी वजह से धीरे धीरे जो नदियां हैं उनका जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता हुआ समुद्र के सी लेवल से जाकर के मिलता है और सी लेवल को इंक्रीज करता है। परिणाम स्वरूप जो छोटे छोटे से आइसलैंड है वो जलमग्न होते जा रहे हैं और उसमें पाई जाने वाली जो हमारी लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। Ocean biodiversity is already being affected as are other part of the ecosystem। अगर हम ओशियन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये भी अछूती नहीं है इस ग्लोबल वार्मिंग से। धीरे धीरे इसके द्वारा जो टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर जो रेज होता है, उसकी वजह से जो ओशियन बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रभावित हो रही है। चाहे वह हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें, और चाहे हम डिकम्पोजर की बात करें, जो कि इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट है। प्रॉक्सिमेट और डायरेक्ट काज बायोडाइवर्सिटी लूज आर वेल डॉक्यूमेंटेड। बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो विलुप्त होती जा रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, जो आगे आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। These include mechanisms such as habitat loss and fragmentation, overexploitation of plant and animal species, introduced species, pollution, climate change, and agroeconomic processes. These are the main causes which affect our biodiversity। इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि हमें किसी तरह से जंगल जो हमारे हैं, जो इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उनको लगातार मनुष्य काटते जा रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का। बहुत सारी स्पीसीज हम ऐसी हैं जो अनवांटेड स्पीसीज हम अपने एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं बिना सोचे समझे। पॉल्यूशन इसका मेजर काज है, जिसमें एक्वेटिक पॉल्यूशन, टेरेस्ट्रियल पॉल्यूशन और
जो हमारा एटॉमिक पॉल्यूशन है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। दिस प्रोसेस बिगिन विद द इमर्जेंस of settled agriculture and more sophisticated hunting and herding techniques। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं जो हमारे एग्रीकल्चर्स हैं जिनमें हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। ये पेस्टिसाइड का प्रयोग जो हम एग्रीकल्चर में इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बचाते हैं, वो रन ऑफ के द्वारा जब बरसात होती है तो पानी जो बरसात का होता है उससे वो हमारे एक्वेटिक वाटर बॉडीज में पहुंचता है और वहां पर जो फूड चेन होती है, फूड चेन के माध्यम से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें वो एक्यूमुलेट होते हैं, चाहे वो हैवी मेटल्स हो, चाहे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स हो, चाहे न्यूरोटॉक्सिक एलिमेंट्स हो, वो पौधे में और जलीय जंतुओं में एक्यूमुलेट होते हैं। परिणाम स्वरूप वो फूड चेन के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, सन 1990 में हमने एक रिसर्च पेपर की स्टडी की थी जब हम विक्रम यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। तो एक पेपर ऐसा भी हमारे सामने आया था जो बहुत ही चौंकाने वाला था कि जो फूड चेन के माध्यम से जब ये पेस्टिसाइड हमारे शरीर में आते हैं तो मदर मिल्क में कुछ सैंपल लिए गए थे और उसमें एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें रिसर्च की थी। तो ये पाया गया था कि मदर मिल्क में भी केमिकल्स जो पेस्टिसाइड जो उनको हम खेतों में प्रयोग में करते थे वो मदर मिल्क में पाए गए और उसके द्वारा जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनमें ये टॉक्सिकेंट जब पहुंचते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी की डेथ और मॉर्टिलिटी भी नोटिस की गई है। बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लोबल लेवल पर बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। Until approximately 10,000 years ago, only natural process of extinction had occurred। अगर हम पुराने समय की बात करें, लगभग 10,000 वर्ष पहले की बात करें, तो उस समय जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती थी वो नेचुरली होती थी, बट वर एडेड टू बाय strictly isolated cause of the extension of wild animals which compacted with human, usually at site of intense settlements. It is estimated that in the present greatly accelerate phase of extension, current rate of extension may be between thousands and 10,000s time that historical rate noticed by Wilson 1988। कुछ थ्रेट्स ऐसे हैं जो बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर, अनस्टेबल हार्वेस्टिंग, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, pollution and climate change, pollution pressure, poaching. In other hand, we can say illegal poaching, forest fire, grazing, timber, fuel, wood mining, मोनोक्रॉपिंग, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इकोसिस्टम, चाहे वह एक्वेटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे एरियल हो, इनका जो डिग्रेडेशन धीरे धीरे हो रहा है, ये सारी चीजें बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा क्लाइमेट चेंज। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग के बीच में हमारी जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है और किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी हमारी प्रभावित होती है, कुछ पॉइंट को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ निकलता है जलवायु परिवर्तन। What is climate change? Climate change, also called global warming, refers to the rise in average surface temperature on Earth. An overwhelming scientific consensus maintaining the climate changes is due primarily to the human use of fossil fuels, which release carbon dioxide and other greenhouse gases into the air. Climate change is rise in average surface temperature on Earth, mostly due to the burning of fossil fuels. Climate changes will make monsoons unpredictable. As a result, rain-fed wheat cultivation in South Asia will suffer in a big way and total cereal
production will go down. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए किए गए हैं और पूछा गया है कि क्या ये वास्तव में इस तरह से हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होता है। बहुत से लोगों ने पहले इसको कहा कि नहीं, ये झूठ है, ये कुछ वेस्टर्न कंट्री की कुछ चाल है कि जिसकी वजह से हम जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में कंट्री आगे है उनको कुछ डिप्रेस करने का कुछ इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब साइंटिफिक इवेंट हमारे सामने आए तो हमें वास्तव में ये समझ में आया कि वास्तव में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। There is broad-based agreement within the scientific community that climate is real. Climate changes is real. The United States Environmental Protection Agency, the National Aeronautics and Space Administration, and the National Ocean and Atmospheric Administration occur that climate change is indeed occurring and is almost certainly due to the human activities. देखिए, बहुत ही साधारण सी बात है। बार बार एक बात आती है कि मनुष्यों के द्वारा ऐसा हो रहा है, मनुष्यों के द्वारा ऐसा हो रहा है। ये इसलिए भी है कि जब हम देखते हैं, चाहे हम प्रोटोजॉन से लेकर के एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा को ले लें, या हम अपने फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड्स, मेमल्स की सीरीज को लें, जब हम एवोल्यूशन को देखते हैं और वैश्विक स्तर पर जीव जंतुओं की उपलब्धता को पाते हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा प्रकृति के साथ हस्तक्षेप करता है, तो उसमें मनुष्य का नाम सर्वोपरि आता है कि हम ही ऐसी स्पीशीज हैं जो प्रकृति के साथ सीधा इंटरेक्शन करते हैं और प्रकृति को प्रभावित करते हैं, अल्टीमेटली वहां के जीव जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। What are the causes of climate change? The primary cause of climate change is the burning of fossil fuels such as oil and coal, which emits greenhouse gases into the atmosphere, primarily carbon dioxide. Other human activities such as agriculture and deforestation also contribute the proliferation of greenhouse gases that cause climate change. हमारा एग्रीकल्चर और जो डिफॉरेस्टेशन है, ये मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार साबित हो रहे हैं और इनमें मानवीय हस्तक्षेप बहुत अप्रत्याशित रूप से हो रही है। While some quantity of these gases are naturally occurring and critically part of Earth atmosphere control system, the atmospheric concentration of carbon dioxide did not rise above 300 part per million between the advent of human civilization roughly 10,000 years ago and 1900. Today, it is about 400 ppm, a level not reaches is more than 400,000 years. What are the effects of climate change? Even a small increase in Earth temperature caused by climate change can have severe effects. The Earth average temperature has gone up 1.4 degree Fahrenheit over the past century and is expected to rise as much as 11.5 degree Fahrenheit over the next. That might not seem like a lot, but the average temperature during the last ice age was about 4 degree Fahrenheit lower than it is today. Earth will warm. The IPCC has predicted that by 21st century, assuming that current trends is burning fossil fuel continue, and the surface of the earth will warm on average by as much as 6 degree Celsius. बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि यदि इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल पर कंटिन्यू रहे और मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, डिफॉरेस्टेशन और जो
अनएक्सपेक्टेड घटनाएं मानव जाति के द्वारा की जा रही हैं, तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। It is not possible to predict how most species, including our own, and how most ecosystems will respond to such extreme warming, but its effect likely to be catastrophic. ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में कितनी स्पीसीज को हम बचा सकते हैं, कितने इकोसिस्टम को हम सेव कर सकते हैं और कितनी स्पीसीज रिफ्लेक्ट करेंगी इस ग्लोबल वार्मिंग के साथ, ये आगे आने वाले समय में हमें पता लगेगा। राइजिंग सी लेवल, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रीजन धीरे धीरे हो रहा है, वो पोलर रीजन की जो आइस है वो धीरे धीरे पिघलती जा रही है और जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी पर गर्म हवाएं चल रही हैं, इन सब का इफेक्ट हमारे यहाँ हो रहा है। द पेरिस एग्रीमेंट, the Paris Agreement reaches December 12th, 2015. It is a paramagnetic deal that holds countries uncountable and bold ambitions over time. Core elements of the agreement include commitment on emission adoption, finance and transparency, and steps to promote carbon trading. पेरिस का जो एग्रीमेंट है वो लगातार कंटिन्यू रहा कि हम ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से कंट्रोल करें। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज हमें वैश्विक स्तर पर करने की आवश्यकता है। 2015 में कुछ गोल लिए गए थे और उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम इस ग्लोबल वार्मिंग से सेव हो सके। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी लिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया, तो ये भी अछूता नहीं है। हालांकि पूरा वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, चूंकि हम भारतवासी हैं, हम अपने यहाँ रह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बात पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लाइमेट चेंज विल मेक मानसून्स अनप्रिडिक्टेबल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले बरसात, गर्मी और ठंडी, 3 सीजन हमारे बहुत अच्छे तरीके से हुआ करते थे। धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ, तो ये जो मेन 3 ऋतुएं हैं, इनके बीच में जो ऋतुएं हैं हिमहिर, शिशिर और वसंत, बहुत ही अच्छा जलवायु परिवर्तन और बहुत अच्छी ऋतुएं हमारे भारत में हुआ करती थी और मानव जीवन इन ऋतुओं को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करता था। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और इन ऋतुओं ने भी परिवर्तन शुरू कर दिया। अगर हम देखें तो बरसात की बात करें तो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होने लगा है, अचानक कहीं भी बरसात होने लगती है, कहीं भी अचानक ठंड पड़ने लगी है। टेम्परेचर अगर गर्म होता है तो अगर हम अपने खजुराहो और नौगांव के एरिया मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, और अगर ठंडियों के समय की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर हो जाता है। और इस प्रकार से जब परिवर्तन होते हैं, अचानक ठंड का होना, अचानक गर्मी का होना, अचानक वेदर चेंज होकर के पानी का बरस जाना, तो इसकी वजह से जो मनुष्य की फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो भी प्रभावित होने लगती है। परिणाम स्वरूप जो हमारा एंजाइमेटिक और हार्मोनल कंट्रोल है वो भी प्रभावित होता है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रभावित होने की वजह से मनुष्य तरह तरह की बीमारियों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है, और उसके इलाज के लिए फिर हमें बहुत सारी मेडिसिन का आविष्कार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। टोटल सीरियल्स प्रोडक्शन विल गो डाउन। हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि हमारी जो खेती है वो भी धीरे धीरे, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है भारत का वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो हमारा फूड इनसिक्योरिटी है वो भी धीरे धीरे हमारी बढ़ती जा रही है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, जो हमारा जीवन यापन की विधि है जिसके द्वारा हम पहले खेती के द्वारा हम पूरा का पूरा हमारा
भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस उसके द्वारा निर्धारित थी, वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। ऐसी स्थिति में हमें इस बात की भी चिंता करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार की खेती को एडप्ट करें, जिससे हमारे जो लाइवलीहुड है वो भी हमारा संतुलित रहे, हमारी फूड सिक्योरिटी भी बनी रहे और हमारा ह्यूमन हेल्थ भी अच्छा बना रहे। The raising level of sea in the coastal areas will damage nursery area of fishing, causing coastal erosion and flooding. अगर हम सी कोस्टल एरिया की बात करें, जैसे कि आपका गुजरात, आपका गोवा, आंध्र प्रदेश का रीजन ले लीजिए, केरल हो गया, इधर आप अगर ईस्टर्न डायरेक्शन में आते हैं तो आपका तमिलनाडु रीजन हो गया, उड़ीसा, काकीनाडा, जहाँ पर एक्वाकल्चर फार्मिंग की जाती है। तो अगर वाटर सी लेवल बढ़ता है और समुद्र अपने प्रवाह में चेंजेस लाता है, तो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो भी प्रभावित होती है और वहाँ का जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो जाता है। ये एनवायरमेंटल मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं? एनवायरमेंटल मेजरमेंट इज investigation involving the assessment of chemical, physical, and biological factor in the environment which affect human health and the quality of life. कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं जिनके द्वारा हम अपने इकोसिस्टम को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड। जो हम फॉरेस्ट को काटने की बात करते हैं उसको हमें रोकना होगा। नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। एवरी ईयर वी लूज a huge number of forest like due to the forest fire। इस पर हमें चिंता करने की आवश्यकता है और प्रिवेंट करने की आवश्यकता है। एफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट वे टू कंजर्व द एनवायरमेंट। हमें फिर से फॉरेस्ट जनरेट करने की आवश्यकता है। जो प्राकृतिक फॉरेस्ट है वो तो ठीक है। क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के द्वारा बहुत सारे इकोसिस्टम को प्रभावित कर दिया जाता है। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई नई पॉपुलेशन आती है हमारे सिस्टम में। तो जो नए बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं और जो हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनको अवेयरनेस करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। कंट्रोल पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन, दोनों स्थिति हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें और चाहे हम पॉपुलेशन की बात करें। रिसाइकल गुड्स की आवश्यकता है। बेस्ट वे टू प्रिवेंट प्रोटेक्शन, ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंशन, यूजिंग पब्लिक रन ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, टर्न ऑफ द लाइट। जब हम घर से बाहर निकलते हैं या किसी कमरे में हम नहीं रहते हैं तो हमें ऐसी अपनी हैबिट डालना है कि रूम से बाहर जैसे ही हम निकलते हैं तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए अगर लाइट की आवश्यकता नहीं। खासतौर से गर्मी में जब हम पंखों का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस का प्रयोग करते हैं, तो रूम से जब बाहर निकलते हैं आप तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए, जिससे आपकी लाइट एनर्जी भी बचेगी और जो जी बताएं। ओके, थैंक यू। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमने अभी देखा। आप सब लोग काम करिए अच्छे से, हाथ ऊपर बढ़ा करके बात करें। सब लोग हाथ उठाएं ऊपर। हाँ, हमने दे तो दी उनको कुछ फाइलें, कुछ और दे देंगे। सर आपने वाइल्ड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर इतना अच्छा सेशन लेक्चर दिया है, इसके लिए महाविद्यालय परिवार और डिपार्टमेंट की ओर से हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर। थैंक यू। छात्रों को क्वेश्चन पूछना है।
हाँ चलिए, हेलो। क्या पूछ तुम्हारी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कोई? कोई नहीं पूछ जा रही। एक सवाल किसी ने किया है, सौरभ सौरभ जी ने एक सवाल किया है कि सर क्लाइमेट चेंज में मानवीय हस्तक्षेप तो है, पर हम अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। क्या क्या कर सकते हैं इस संबंध में? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। देखिए, आपने अगर हमारा लेक्चर सुना होगा तो हमने आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है। अगर हम पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर सकते हैं, और जहां पर हम रह रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। दूसरे अधिवक्ता तो हमें हर हाल में प्लांटेशन करना होगा। दूसरा, जो आपकी एक्वेटिक वाटर बॉडी हैं उनको हमें अपने स्तर पर सुधारने की आवश्यकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है बेटा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। कर दो आप। इसके लिए आज के समय में अगर हम बात करें गांव की, तो गांव के ज्यादातर तालाब सूखे पड़े हुए हैं। और पहले एक समय ऐसा था जब गांव में किसी बात को सुनाने के लिए हमें शहर में आकर के बहुत सारी बातें करना पड़ती थी और गांव के लोग नहीं पहुंच पाते थे। आज का हमारा प्रत्येक युवा वर्ग, प्रत्येक छात्र इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, गूगल से जुड़ा हुआ है। आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन के पास रख सकते हैं, और यदि आप अपने अपने गांव के तालाबों का गहरीकरण गर्मियों में करा सके तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा, और ये आप लोग कर सकते हैं। और कोई सवाल? आप लिख सकते हैं, मोबाइल से लिख सकते हैं आप मैसेज में। हेलो सर। जी, सर मेरा क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज पर कोई जो इफेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं? पूरा प्रेजेंटेशन बेटा हमारा क्लाइमेट सर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट पर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज का देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव फसल पर हो रहा है, खेती पर हो रहा है। आपने देखा होगा पुराने समय में जो हमारे किसान थे वो अच्छा प्रोडक्शन लेते थे। आज के समय में क्या होने लगा है कि जब फसल कटने का समय आता है उस समय हमारा जलवायु परिवर्तन बिल्कुल एडवर्स हो जाता है। ओले गिर जाते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, पानी बरस जाता है। तो जो हमारी पकी हुई फसल है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खेतों में ही नष्ट हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा पहलू है क्लाइमेट चेंज का, जो मानव जीवन को भी प्रभावित करता है। समय पर मौसम का ना होना, समय पर ऋतुओं का परिवर्तन ना होना से बहुत सारी बीमारियां भी पनपने लगती हैं, मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जी, किसी को और कोई सवाल करना है?
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका और बच्चे ने बहुत गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया, सुना। और निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सभी छात्र छात्राओं के लिए एक जानकारी का बहुत अच्छा आपने ज्ञान प्रस्तुत किया। और हम सभी डिपार्टमेंट जूलॉजी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई प्रेषित करना चाहते हैं। धन्यवाद।